channel KM the Abhyas Chemistry. Today the topic is related to the optical isomers in our super short trick series. Super short trick series. Amazing series, guys. Because the question are today the question is related with all these things. All these things means question asking about 2-methyl butane. 2-methyl butane. What is the meaning of this? If total number of monochloride derivatives. मतलब आपसे क्या पूछा है बच्चों? How many monochloride derivatives are possible from 2-methyl butane, or how many monochloride derivatives are possible from 2-methyl butane excluding stereoisomers, total of enantiomers, total of enantiomeric pairs, total of racemic mixture, total of chiral compounds, even total number of resolvable forms. In last the question asking about total number of structures which can be separated out by fractional distillation or any other separation technique except resolution. So various things are asked in this question, and the question is very tricky question. Tricky question. That means if you go with the concept, definitely you will maximum the guys get definitely wrong answer. But you will go with my trick, with my super trick, then definitely you will get a correct answer in a very short time. तो guys हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, ज्यादा टाइम ना लेते हैं, लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं. क्वेश्चन इज दिस, सॉल्यूशन. दिस इज द 2-methyl butane. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट स्टूडेंट्स को कई बच्चों को तो ये प्रॉब्लम होती है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-methyl butane, कि पहले 2-methyl butane बन जाए उसके बाद हम आगे की कहानी करेंगे. तो बच्चों दिस इज 2-methyl butane, दिस इज आइसोपेंटेन. This is isopentan or 2-methyl butane. So guys, in such type of question, at first we have to mark types of carbon as well as hydrogen atoms. So primary, tertiary, secondary, primary and primary. After this we have to check the attachment. Because types of H equal to number of products. Simple सा लॉजिक है. Types of H equal to number of products. तो आपसे पूछा how many monochloride derivatives. Derivative means which is formed by any parent, जो किसी parent से बनेगा. तो आपसे कहा कि यार बेटा Cl2H nu. This is the key. Cl2H nu, monochlorination, that means one hydrogen replaced by one chlorine atom. वन क्लोरीन एटम. तो आपने क्या बेटा यहां से हटाया, मैं बना के प्रोडक्ट बनाता हूं. देखो मैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl. It comes out from this plus यहां से बनाए बच्चों CH3 CH CH3 CH Cl CH3. ठीक है, यहां से बनाया हमने from tertiary carbon. If replace tertiary hydrogen with a chlorine, then definitely we get this. And last one this CH2 Cl CH CH3 CH2 CH3. तो guys आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर प्रोडक्ट्स कितने बेटा? टोटल प्रोडक्ट्स हो गए 4. ठीक है, तो अब आप देखें. At first we go with the second part. Second part means excluding stereoisomer. That means we are not talking about any chiral carbon. That means we are not talking about the presence of chiral carbon. Simple सी बात. Types of H equal to number of products. Primary it is attached with secondary, whereas both primary attached with tertiary. तो definitely ये दोनों primary इस primary से different है. इसके बाद ये दोनों primary से different because दोनों का टाइप अटैचमेंट्स है, बिकॉज बोथ आर अटैच्ड विद टर्शियरी. तो ये दोनों से हम आएंगे. तो एक प्रोडक्ट ने यहां से लिया बच्चों, एक टर्शियरी से लिया, एक सेकेंडरी से लिया, एक प्राइमरी से लिया. टोटल हम प्रोडक्ट्स 4 हो गए. तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स का आंसर आ गया बच्चों अपने पास 4. कितना आ गया बच्चों? 4. फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स. अब आप पूछेंगे सर आपने यही तो नीचे पूछा है, आप बोलेंगे सर आपने यही तो नीचे पूछा है, बट हियर आई एम आस्किंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स. मैंने यहां आपसे कुछ नहीं बोला, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग. दैट मींस स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो.
स्ट्रक्चरल भी काउंट होंगे एंड स्टीरियो भी काउंट होंगे। तो स्ट्रक्चरल जब काउंट हो तो हमने 4 काउंट कर लिए। स्टीरियो दैट मींस प्रेजेंस ऑफ chiral carbon. Chiral carbon must be present to given organic compound for optical isomerism or given products for optical isomerism. तो यहां से चलो बच्चों, जब आपने यहां Cl लगाया, इस प्राइमरी का H हटा के Cl लगाया, तो आप मुझे बता दें क्या कहीं पर भी कोई chiral carbon बना? नहीं बना बेटा। chiral carbon चारों वैल्यू से 4 डिफरेंट ग्रुप, नॉर्मल सी बात है बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा प्रोडक्ट तो काउंट होगा 1, यहां आ जाओ। कहीं पर भी आपने जब Cl लगा तो कोई भी chiral बना, अरे जहां Cl लगा एग्जैक्टली वही बन गया बेटा। देखो आप, एक तरफ H, एक तरफ Cl, एक तरफ CH3 और एक तरफ पूरा ग्रुप, ठीक है, ऑल ग्रुप, ठीक है। 1 2 3 4 दैट मीन इट हैज अ मिरर इमेज, डेक्स्ट्रो देन लीवो और लीवो देन डेक्स्ट्रो। वी हैव टू assume because ना आपको neither Fisher projection nor Weierstrass formula is given, ना तो आपको फिशर दिया है बेटा ना आपको Weierstrass formula दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ assume कर सकते हो अगर डेक्स्ट्रो रेफरेंस का मिरर इमेज क्या होगा, L होगा। तो 1 2 3, चलो आप आगे चलो। जब आपने यहां का H हटा के Cl लगाया, आप यहां का H हटा के Cl लगाया, क्या कोई भी chiral बना? नहीं बना बेटा, बट प्रोडक्ट तो काउंट करोगे ना बेटा। तो 4, यहां चलो। फिर आप बच्चों बोलोगे कि सर हो गया 5 आंसर। तो मान लिया बेटा यहां का H हटा के जो Cl लगा, chiral नहीं बना, बट adjacent carbon of this carbon क्या हो गया, becomes a chiral carbon। देखो बच्चों, बड़ा खूबसूरत सा सवाल था, यहीं पर बच्चा मार्क खाता है और यही क्वेश्चंस के एग्जाम्स रिपीट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी पूछ लेते हैं इन 8 थिंग्स में कुछ भी। अभी आते हैं लास्ट तक। तो मैंने आपसे कहा chiral बनेगी, तो बेटा ये थोड़ी कि इसी कार्बन की इमेज बनेगी, chiral कार्बन इमेज तो पूरे कंपाउंड की बनेगी ना बेटा। आप मिरर के सामने खड़े हो तो ये थोड़ी कि आप सिर्फ यहां से मिरर देखना चाहोगे, आपकी पूरी इमेज आएगी ना बेटा। तो वही है ये, दिस इज एन एसिमेट्रिक कंपाउंड एंड एसिमेट्रिक कंपाउंड की पूरे की इमेज बनती है। क्लियर हो गया मेरी बात? बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज आपसे बात कर रहा हूं मैं यहां पर। D then L, तो 4 5 एंड 6। तो आपने एज्यूम किया 5 आंसर, but answer will be 6। मैंने आपसे यही कहा था स्टार्टिंग में, if you go with the concept, with your concept, then definitely you will get a wrong answer, but with my super trick you will get a super trick with concept, you will get a definitely correct answer in a short time। तो बेटा आंसर कितना है बेटा, एक्सक्लूडिंग। अब यहां पर आप देखो क्वेश्चन खूबसूरत, देखो छुपी हुई बात देखो, आपसे नहीं बोला उसने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। जब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर नहीं बोला है, इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर भी काउंट करना है, स्टीरियो स्ट्रक्चर की ट्रिक ये है बेटा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। जितने टाइप के H होंगे प्रोडक्ट उतने बनेंगे। तो हमने कह दिया 1 2 3 4 नॉर्मल बात कर दी, बिकॉज़ क्वेश्चन आस्किंग अबाउट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो अगर इन जनरल अगर इजी वे में क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। पर उस बारे में नहीं बात करना है तो डेफिनेटली बेटा आपको स्ट्रक्चर भी काउंट करना है, स्टीरियो भी काउंट करना है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया बच्चों, फर्स्ट का आंसर आ गया 6, ठीक है। सेकंड आंसर आ गया 4। जनरली मैक्सिमम बच्चे यहां पर 5 आंसर देते हैं, अगर 6 दिया है तो सैल्यूट टू ऑल, ठीक है। चलो थर्ड, टोटल नंबर ऑफ enantiomers, that means enantiomers are mirror images of each other। तो 1 2 3 4, थर्ड का आंसर 4 आ गया। फोर्थ पे चलो बच्चों, टोटल ऑफ enantiomeric pairs मच ऑब्वियस, सब जानते बेटा, इन दोनों का 1 पेयर, इन दोनों का 1 पेयर, टोटल enantiomeric pairs कितने गए, 2 हो गया। फिफ्थ नंबर पे चले बच्चों, फिफ्थ total racemic mixture। Racemic mixture, what is the meaning of racemic mixture? Racemic, if we mix two enantiomers into an equimolar amount, if we mix two enantiomers of an organic compound into an equimolar amount, then resultant mixture is known as racemic mixture। तो बेटा इन दोनों enantiomers का मिक्सचर 1 हो गया, इन दोनों का 1 हो गया, तो नंबर racemic mixture कितना आएगा, 2। 6 आया बेटा chiral compound। chiral compounds are enantiomers, मतलब जो enantiomer ट्रिक है बेटा, ये जो enantiomers का आंसर आएगा वही आंसर किसका आएगा, chiral compounds का आएगा। जो enantiomers का आंसर वही chiral compounds का आंसर। तो बेटा 6 नंबर पे आ गए हम लोग। 6 नंबर पे क्या पूछा आपसे, chiral compound कितना आएगा बेटा, तो आपसे कहा enantiomers कितने हैं, 1 2 3 4, ये आ गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर पे चले। अब बेटा यहां से चीजें बदलेंगी इन द सेंस, यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का लेवल बढ़ाते हैं ना। 7 नंबर क्या पूछा बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिजोल्वेबल फॉर्म। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्वेबल फॉर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन,
आप बोलोगे सर रिजोल्वेबल से रिजोल्यूशन कैसे आ गया? Resolution is the only process. Resolution is the only process by which we can separate enantiomers from a racemic mixture. It is a process by which we can separate enantiomers from a racemic mixture. मुद्दे की बात ये है कि यार बेटा सीधा सीधा खेलिए कि आपको अगर racemic mixture में से enantiomers अगर मतलब मिरर इमेज को सेपरेट करना है तो दुनिया में एक ही मेथड है. वो मेथड कौन सा? रेजोल्यूशन. तो आता हूं मुद्दे की, हो गई थ्योरी की बहुत सारी बात. आप ऐसे करते हैं, ध्यान से सुनना मेरा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एंड मतलब वीडियो के एंड पे चल रहे हैं हम लोग. मैंने आपसे कहा अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर हम कायरल कार्बन की बात नहीं कर रहे होते, कायरल कार्बन कंसीडर नहीं कर रहे, कंसीडर नहीं कर रहे हैं किसको? कायरल कार्बन को. जब कायरल कार्बन कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि यार टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरल डेरिवेटिव्स एक्सक्लूडिंग स्टीरियो. तो आंसर तो 4 था, आंसर तो 4 था ना बेटा. बट वी आर आस्किंग अबाउट स्टीरियो आइसोमर्स, है ना. तो बेटा विदाउट कायरल 4 था. ध्यान से सुनना, विदाउट कायरल 4 था. जैसे ही हमने कायरल कंसीडर किया तो आपने कहा सर आंसर 6 हो गया. जैसे कायरल किया सर एक इसके एक्स्ट्रा आ गई, एक इसके एक्स्ट्रा आ गई. दैट मीन 2 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. मतलब 4 से 2 एक्स्ट्रा आ गई. वो 2 स्ट्रक्चर कौन से? मिरर इमेजेस. वो 2 कौन सी है? मिरर इमेजेस. एंड मिरर इमेजेस कैन ओनली बी सेपरेटेड आउट बाय रेजोल्यूशन. मिरर इमेजेस कैन ओनली बी सेपरेटेड आउट बाय रेजोल्यूशन. तो मुद्दे की बात ये है बिना कायरल कार्बन के 4 थे. कायरल कार्बन के बाद जैसे कि 2 इमेज की बात करनी पड़ेगी तो और मिरर इमेज को सेपरेट करने का दुनिया में एक ही मेथड है, वन एंड ओनली मेथड, दैट इज रेजोल्यूशन. तो रेजोल्यूशन से कितने सेपरेट होंगे बेटा? 2. आगे बेटा कि 6 थे, ठीक है. विदाउट कायरल 4 थे, कायरल के होने से 2 एक्स्ट्रा आ गए. वो 2 होने मिरर इमेज और मिरर इमेज को सेपरेट करो रेजोल्यूशन. आगे बच्चों समझ में. अब पूछा आपसे लास्ट पार्ट का क्वेश्चन के एंडिंग पे आ गए बेटा. क्या पूछना आपसे? structures which can be separated out by fractional distillation or any other separation technique just like distillation, boiling point, melting point, viscosity, etc. blah blah blah. ठीक है. और any other separation technique, separation technique means एक्सेप्ट रेजोल्यूशन. मतलब आपसे कहा 6 में से 2 तो आपने 6 में से 2 तो आपने रेजोल्यूशन सेपरेट कर दी ना बेटा. अब जो बाकी बची हुई है वो दुनिया किसी मेथड से अलग कर लो. बाकी कितनी बची? 4 ना बेटा. 6 में से 2 सेपरेट कर दी, रिमेनिंग 4 है. 4 को आप चाहो उनको आग लगा दो तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला जल्दी उड़ जाएगा, बाकी नीचे रह जाएंगे. तो इसका मतलब ये आया, लास्ट आंसर कितना आ गया? 4. सीधा समझ बेटा. 6 में से 2 हमने कहा रेजोल्यूशन सेपरेट कर दी, रिमेनिंग 4 कौन सेपरेट करेगा? जो कोई भी मेथड बचेगा. तो बेटा बात ये थी, एक खूबसूरत सा सवाल था, लेंथी सवाल लिया. बस इन 8 में से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. मैक्सिमम अच्छे एग्जाम से इसको पूछते हैं, नॉर्मल एग्जाम्स बेटा इसकी बात कर लेते हैं. पर आपका एग्जाम प्रेस्टीज एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस तरह के क्वेश्चन. रेयरली बेटा, रेयरली नहीं, मोस्टली आते इस तरह के क्वेश्चंस. ठीक है. और मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आप इसको अपने कॉन्सेप्ट से चलोगे तो रॉन्ग आंसर की तरफ जाओगे, वो होता 5. ठीक है. पर एग्जैक्टली गुड कॉन्सेप्ट इज ट्रिक, आंसर विल बी 6. तो बेटा ये ऐसे ट्रिक्स थी, मैं आपको लेकर आता रहूंगा. वीडियो को लाइक करें, फिर बोला पहले ही बोला मैंने, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को दें. एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, दहलीज पे खड़ा है, हम लोग साथ चल के इसको क्रैक करेंगे. एग्जाम के दिन भी मिलेंगे, एग्जाम के पहले मिलेंगे. थैंक यू, गुड लक.